Hello, my dear student. Welcome to the online classes of Aao Padhe. So, student, as you all know that I'm your science teacher, and today I'm going to teach you a new lesson, chapter number 1, Nutrition in Plants. So, student, take your book and open with you क्योंकि आपकी जो भी बुक है हम उसके अकॉर्डिंग ही चैप्टर को रीड करेंगे. ऑलराइट, सो आपकी चाहे आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो द कंटेंट इज द सेम. ऑलराइट, सो आप अपनी बुक से अपने चैप्टर को मैच कर सकते हैं और उसे अच्छे से रीड कर सकते हैं. सो स्टूडेंट, वेलकम टू आओ पढ़े एंड लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? Nutrition is the mode of taking food by an organism and it's utilized by the body. यानी न्यूट्रिशन क्या होता है कि एक तरीके जिस हम फूड को इनटेक करते हैं और उसको यूटिलाइज करना, यानी उसको बॉडी में लेने के बाद में हमारी पूरी बॉडी उसे किस तरीके से डिफरेंट सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करती है, उसे एनर्जी में कन्वर्ट करती है. So this is the nutrition. Okay, so what we need to take a nutrition? We need a different type of food components. Okay, so do you know about the some nutrients or the major 5 nutrients which is required for our daily diet? Okay, we need carbohydrate, fat, protein, vitamins and minerals. Okay, so these all are the nutrients. सो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें अपनी बैलेंस डाइट में रिक्वायर्ड रहते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट, सो न्यूट्रिशन, व्हाई न्यूट्रिएंट्स आर नेसेसरी? सो द न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड कंज्यूम enables living organism to build their bodies and growth. तो जैसे जैसे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में इनटेक होते हैं वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी क्या होती है, ग्रो करना स्टार्ट करती है और डिफरेंट जो बॉडी सेल्स होती है वो बिल्ड होना भी स्टार्ट हो जाती है. न्यूट्रिएंट्स हेल्प टू रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ द ऑर्गन्स. तो डू यू नो दैट विच न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द बोर्न आउट द सेल्स एंड टिश्यूज? Yes, protein is the necessary nutrient present in our food to repair the damaged part of the body. And nutrients also provide energy for carrying out the various functions. Now, how many types of nutrients in the plants? There are 2 types of modes of the nutrients. First one is the autotrophic and second one is heterotrophic. So, autotrophic means the plants that have chlorophyll trap the energy from the sun and prepare their own food. Such nutrients wherein the food is prepared by the organism itself is called autotrophic nutrients. यानी ऐसा nutrients जिसमें organism अपना food self prepare करता है. So don't call that कि हमारी मम्मा भी तो self खाना बनाती है तो हम भी autotrophs हुए. No, हम अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं. सो वी आर नॉट ऑटोट्रॉफिक. ओके, बिकॉज प्लांट्स जो होते हैं वो किसी की हेल्प नहीं लेते. दे इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट एंड दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स अपना फूड सेल्फ बनाते हैं. तो इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. And their mode of nutrition is autotrophic nutrition. Clear that? So the organism capable to prepare their own food is called autotrophs. यानी जो अपना खाना खुद बनाते हैं. For example, green plants are the autotrophs. So all green plants are autotroph. Auto means self and trophs means nutrients. Okay? यानी जो nourishment होता है जो वो self बनाते हैं उसे हम बोलेंगे autotroph nutrients. They prepare their own food by the process of photosynthesis. और प्लांट अपना खाना किस प्रोसेस से बनाते हैं? By the process of the photosynthesis. Now second one is heterotrophs या heterotrophic. Heterotrophic organisms are those who obtain food from other organisms. Since the organism depend on other organism for their food, they are called consumers. Okay, so all animals and non-green plants like fungi,
come under these categories. An organism that allow the heterotrophic mode of nutrition is called heterotrophs. यानी जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं एंड दे डिपेंड ऑन द अदर फॉर देयर फूड, यानी जो अपने फूड के लिए किसी और पर डिपेंड रहते हैं लाइक अदर एनिमल्स और अदर प्लांट्स, तो उसे हम क्या कहेंगे? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सो उसमें हम किसे इंक्लूड करते हैं? ऑल द एनिमल्स एंड इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, यानी हम भी क्या है? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स. सो वी आर हेटरोट्रॉफ्स. ऑलराइट. Hetero means depends on the other and trophs means the nourishment. Alright. Now, how do plants prepare their food? So, you all know that the plants prepare their food by the process of the photosynthesis. Now, question may rise, what is the photosynthesis? The process by which plants prepare their own food in the presence of water, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंट में जो फूड प्रिपरेशन होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. ऑलराइट. तो द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग द रॉ मटेरियल कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. So there are a large number of tiny pores called stomatas on the surface of the leaves. Okay, look at the picture. In this picture, on the leaves की जो लोअर सरफेस होती है उस पर स्टोमेटा ज्यादा प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो स्टोमेटा, दिस इज द स्टोमेटा. ओके, and the carbon dioxide gas enter the leaf of the plant through the stomata present on their surface. जो leaves की surface पर stomatas होते हैं ये क्या intake करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. And each stomatal pore is surrounded by the pair of the guard cell. Look at the picture. Okay, this is the stomata और उसकी जो outer portion है उसे हम क्या बोलेंगे? guard cells. The opening and closing of the stomatal pore controlled by the guard cells. तो guard cells जो होती है वो ही स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने के कंट्रोल का वर्क करती है, यानी डे के टाइम में वो स्टोमेटास को ओपन करती है और एट द नाइट की टाइम में वो उसे क्लोज रखती है. ऑलराइट. नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट बाय द प्लांट्स. तो जब भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है then plants give the oxygen gas and also produce their food in the form of the glucose or carbohydrate. Okay, तो photosynthesis के प्रोसेस में हमें बाई प्रोडक्ट क्या मिलता है? ग्लूकोज. Okay, so the plant use carbon dioxide and water in the presence of the sunlight and chlorophyll to produce carbohydrate and oxygen gas. The carbohydrate thus produced by the plant is converted into the starch. और carbohydrate वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? In the form of starch. Okay, so look at this reaction. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने सनलाइट की प्रेजेंट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बनाया. ओके, सो दिस इज द केमिकल रिएक्शन प्रेजेंटेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन. ऑलराइट. Now, nutrition in plants that do not contain chlorophyll. Okay, यानी नॉन ग्रीन प्लांट या हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अभी हमने रीड किया कि प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं दे आर ऑटोट्रोफ्स, बट सम प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल. सो उस कंडीशन में प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, सो दे आर डिपेंड ऑन दी अदर्स. सो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स. ओके, सो therefore there are the other plants and animals that depends on the food are parasitic plant, insectivorous, saprophytes and symbiotic. Okay, so heterotrophs को हमने 4 parts में डिवाइड किया है: parasitic, insectivorous, saprophytic and symbiotic. So first we discuss about the parasitic plants. Some plants live on another plants for their nutrients. These are called parasite. para यानी दूसरे पर, site यानी डिपेंड रहना. ओके, सो ऐसे प्लांट्स जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पैरासाइटिक प्लांट्स. कैन यू गिव एनी ऑफ द एग्जांपल ऑफ द पैरासाइटिक एनिमल? ओके, विच वी आर विजिबल डेली लाइफ और इन आवर डेली नाइट. ओके, ऐसा कोई पैरासाइट जो हम रोज देखते हैं? यस, मॉस्किटो. मॉस्किटो क्या है? एक पैरासाइटिक एनिमल है जो हमारी बॉडी से क्या सक करता है? ब्लड. और वो किस पर डिपेंड रहता है? अदर ऑर्गेनिजम्स के ब्लड पर. तो वो भी क्या हुआ? पैरासाइटिक एनिमल. ओके, सो
I hope you understand about the parasites. Okay, so the plants which live on the other, यानी जो दूसरों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और बदले में उनको हार्म पहुंचाते हैं. Okay, so these type of plants is known as parasitic plants. Okay, और जो जिस प्लांट से वो अपना न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? होस्ट प्लांट. What we call host plant. Okay, for example, Cuscuta is the parasitic plant. Look at the picture. Okay, this is the Cuscuta plant. These are the parasite of the other plant. Next is insectivorous plants. यानी some plants जो होते हैं वो insect से अपना food intake करते हैं. कई बार ऐसी जो सॉइल होती है जहां पर नाइट्रोजनस सब्सटेंस की डेफिशिएंसी होती है तो वो प्लांट्स और नॉन ग्रीन प्लांट्स अपनी न्यूट्रिएंट को फुलफिल करने के लिए इंसेक्ट को एज अ फूड इनटेक करते हैं. सो लुक एट द पिक्चर. देयर लीफ इज कन्वर्टेड इन द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर. यानी एक घड़े की शेप में उनकी लीव्स होती है और उनकी एक जो लीफ होती है वो लीड या फ्लिप की तरह वर्क करती है. इसके अंदर नाइट्रोजनस सब्सटेंस फिल होते हैं और जैसे ही इंसेक्ट इस लीड पर बैठता है वो स्लिप होकर इस पिक्चर के अंदर गिर जाता है और वहां पर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो उस इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं और उससे प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिल जाता है. ओके, सो the leaves of these plants are modified into the picture like structure and the top part of the leaves act like a lid which can open and close the picture and the picture contain a hair is downward direction. Okay, यहाँ पर क्या होते हैं? slippery और hairy होता है जिसकी वजह से वो लीड से इंसेक्ट कहाँ गिरेगा? पिक्चर के इनसाइड में. So the picture on the capture of the insect secretes some digestive juice which help the digestion of the insect. तो इस तरीके से इंसेक्ट का डाइजेशन होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को न्यूट्रिशन अवेलेबल होता है. Some example is Distia and Nepithus. Okay, and also the Venus flytrap is very common example for the insectivorous plants. Now next one is saprophytes. Some organisms survive on decaying food organism. यानी जो डेड हो चुके हैं या खराब हो चुके हैं ऐसे मटेरियल से जो अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? saprophytes. So the mode of nutrition is called saprophytic nutrition and the organism that survives become of the saprophytic nutrients are saprophytes. जो saprophytic nutrition से अपना न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? saprophytes. So how do saprophytes obtain their nutrition? The saprophytes secrete digestive juice on the decaying or dead matter. जैसे कि look at the picture, the पुरानी और old bread जो होती है उसके ऊपर जो ये डेड और डिकेइंग मैटर होता है उसके ऊपर जो बैक्टीरियाज होते हैं या जो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं और these juice convert the matter into the solution और वो मैटर को सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं and they absorb these type of solution as in a form of nutrition और वो उस सॉल्यूशन को न्यूट्रिशन की फॉर्म में इनटेक कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल फंगीज, yeast and mushroom are the saprophyte and they can be found on stall food and pickles which are exposed in hot and humid environment. तो हमने जनरली अचार के ऊपर फफूंद जमते हुए देखा है व्हाइट कलर की, या हमारी ब्रेड या फिर चपाती अगर 2-3 दिन तक किसी क्लोज कंटेनर में रह जाती है तो उस पर भी हमें फंगस दिखाई देती है. ओके, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ saprophytic nutrients. Now next is symbiotic nutrients. Symbiotic means some organism live together to share their shelter and food with each other. यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो साथ में रहते हैं और दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं और लाइक अ फ्रेंड. ओके, यानी दोनों एक दूसरे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं और दोनों ही एक दूसरे को हार्म नहीं पहुंचाते. सो दीज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. सो फॉर एग्जाम्पल some fungi lives in the roots of the trees. These fungi take food from the trees and in return help the trees in absorbing water and nutrients from the soil. यानी कुछ फंगस ऐसी होती है जो बिग ट्रीज के साथ में रहती है और उन्हें वाटर प्रोवाइड कराती है और बदले में वो ट्रीज से अपना न्यूट्रिशन को इनटेक करती है. Sometime an organism that contain chlorophyll such as algae live in associate with the fungi. यानी कुछ algae जिनमें chlorophyll present होता है वो फंगस के साथ में रहती है like a lichen. Okay, look at the picture. Fungus and algae live together, they form a lichen.
These algae provide food and nutrition to the fungus, while the fungus provide water and mineral and shelter to the algae. तो जो फंगस होती है वो क्या प्रोवाइड कराती है? वाटर, मिनरल और शेल्टर, और एल्गी उसे फूड प्रोवाइड कराती है, और दोनों एक साथ इजीली रहते हैं. सो दीज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज symbiotic nutrients. The last topic is replenishing in the soil with the nutrients, कि कैसे सॉइल में वापस से सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं. ओके, कि हम तो अपना न्यूट्रिशन फूड से इंटेक करते हैं, बट सॉइल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या डिफरेंट न्यूट्रिएंट कैसे रिप्लेनिश होते हैं. ऑलराइट, so the plant get their nutrition from the soil mainly as there is need to replenish the soil again with the nutrient so the plants can be survive. अगर soil में proper nutrients नहीं होंगे तो plants की growth भी proper नहीं होगी. So plants also replenish the different type of nutrients by the soil, यानी वो soil से अपने सारे nutrient को intake करेंगे. So the fertilizers and manure is oftenly used to replenish the soil. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पेड़ों में खाद डालते हैं. तो फर्टिलाइजर की वजह से हमारी जो सॉइल में किसी भी एक सब्सटेंस की जो डिफिशियंसी होती है वो उसे फुलफिल कर लेता है और हमारे प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ कंप्लीट होती है. एंड सम प्लांट्स में स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, यानी फली वाले पौधे, राइजोबियम्स जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि बीन्स, पीज. ओके, तो इनकी जो रूट्स होती है वो नोड्यूलेटेड होती है और उसपे स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जिसको बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया एनवायरमेंट की नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं और सॉइल में नाइट्रोजन की कमी को फुलफिल करते हैं. सो दीज आर द मेथड टू रिप्लेनिश द सॉइल. और जब भी डेड और डीकेइंग मैटर जो होते हैं वो जब सॉइल में मिक्स हो जाते हैं तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो उस न्यूट्रिशन को अगेन सॉइल में मिक्स कर देते हैं. तो इस तरीके से प्लांट्स को अगेन न्यूट्रिशन मिल जाता है. सो स्टूडेंट, in this video we discuss about the nutrition in plants like autotrophic and heterotrophic mode of nutrition. And below the link you get the notes and PDF. So read this very carefully, and if you have any of the doubt then comment me in the comment section. And don't forget to like and share my videos. I hope you clearly understand this topic very well, and thank you for watching. आओ पढ़ें.